السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے آن لائن کلاسز میں عبدالرؤف ایس اے میتھمیٹکس జరిపేట రామగుండం آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جماعت دہم کی ریاضی کتاب کا پہلا باب حقیقی اعداد ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ حقیقی اعداد کو سمجھنے سے پہلے سابقہ معلومات کی جانچ کر لیتے ہیں، ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے اعداد کی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ طبعی اعداد کے سیٹ کو n سے ظاہر کرتے ہیں، جو 1 سے شروع ہوتے ہیں اور لامتناہی ان کی تعداد ہوتی ہے۔ n مساوی ہے سیٹ آف 1, 2, 3, 4 اسی طرح لامتناہی تک۔ اگر ان طبعی اعداد کے سیٹ میں صفر کا اضافہ کر دیا جائے تو جو نیا سیٹ حاصل ہوتا ہے وہ مکمل اعداد کا سیٹ کہلاتا ہے، جس کو W سے ظاہر کرتے ہیں۔ غور سے دیکھیے بچوں، یہاں پر 1, 2, 3, 4, 5 لال رنگ سے بتائے گئے ہیں۔ یہاں بھی وہ تمام اعداد ہیں۔ ایک اضافہ ہے صفر کا ہے، جس کو بلو کلر سے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی اگر طبعی اعداد کے سیٹ میں صفر کا اضافہ کرنے سے حاصل ہونے والا نیا سیٹ مکمل اعداد کا سیٹ کہلاتا ہے، جس کو W سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا سیٹ ہے صحیح اعداد کا سیٹ، جس میں تمام مکمل اعداد پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ منفی اعداد بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے 0, 1, 2, 3, 4, 5 یہ تمام یہاں پر ہیں موجود، دیکھیے بلو رنگ اور لال رنگ کے۔ اس کے علاوہ گرین کلر میں بتائے گئے ہیں وہ منفی اعداد ہیں۔ اس طرح سے اس کے اندر مثبت کے ساتھ ساتھ منفی اعداد بھی پائے جاتے ہیں، تو وہ صحیح اعداد کا سیٹ انٹیجرز کہلاتا ہے، جس میں مثبت اور منفی دونوں اعداد پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا سیٹ ہے ناطق اعداد کا سیٹ، جس کو P/Q کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جہاں P اور Q کا تعلق صحیح اعداد سے ہوتا ہے اور Q کی قدر صفر کے برابر نہیں ہوتی۔ ایسے اعداد کو ناطق اعداد کا سیٹ کہتے ہیں، جسے ریشنل نمبرز بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 اعداد کے علاوہ اور ایک غیر ناطق اعداد بھی ہوتے ہیں، جن کو P/Q کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا، ان کو غیر ناطق اعداد کہتے ہیں۔ اس طرح سے طبعی اعداد، مکمل اعداد، صحیح اعداد، ناطق اعداد اور غیر ناطق اعداد کا اجماع ہی حقیقی اعداد ہے۔ ہمارے باب میں حقیقی اعداد سے جڑے ہوئے تصورات کا ایک مرتبہ ہم نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے پہلے باب میں دیکھیے 1.1 اقلیدس کا تقسیمی الگورتھم ہے، اور دوسرا تصور ہے حساب کا بنیادی مسئلہ، تیسرا تصور ہے مفرد اجزاء ضربی کی مدد سے ذال الف میم اور عین الف میم معلوم کرنا، غیر ناطق اعداد، مختتم اور غیر مختتم تکراری اعشاریہ، قوت نما اور لاگرتم۔ اس طرح سے اہم تصورات ہمارے پہلے باب حقیقی اعداد میں شامل ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے ہر ایک تصور کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں صرف اور صرف پہلا جو نقطہ ہے اقلیدس کا تقسیمی الگورتھم، اس پر ہم انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے اور سیکھیں گے۔ اس کے بعد دیگر ویڈیوز میں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے ہر تصور پر آپ کو ویڈیو کے آن لائن کلاسز انشاءاللہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اب ہم سب سے پہلا تصور اقلیدس کا تقسیمی الگورتھم کو سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ تقسیم کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ تقسیم کو ہم نے بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے 3 کو 2 سے تقسیم کر رہے ہیں، 4 کو 2 سے تقسیم کیا جا رہا ہے، 5 کو 2 سے تقسیم کیا جا رہا ہے، 6 کو 2 سے تقسیم کیا جا رہا ہے، 7 کو 2 سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں جتنے بھی اعداد ہیں 3 ہیں، 4، 5، 6، 7، ان تمام کو 2 سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بار جان لیجئے، جو تقسیم ہونے والا عدد ہے مقسوم کہلاتا ہے، اور تقسیم کرنے والا عدد مقسوم علیہ کہلاتا ہے۔ جو جواب آ رہا ہے خارج قسمت، اور اس کے بعد اگر کچھ باقی رہ گیا تو وہ باقی عدد کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے 2 ایکن 2، 2 دونی 4، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 تیا 6۔ آئیے دیکھتے ہیں باقی کیا بچتا ہے۔ 3 میں سے 2 گیا تو 1 باقی رہے گا، 4 میں سے 4 گیا تو 0، پورا تقسیم ہو رہا ہے 0 کے مراد۔
5 में से 4 गया तो 1 बाकी रहेगा, 6 में से 6 गया तो 0 बाकी रहेगा, 7 में से 6 गया तो 1। बाकी का अगर आप मुशाहिदा करते हैं मक़सूम अलैह 2 है, तब बाकी की कदर 0 या 1 होगी। यही दोहराते जाएंगे, बार बार यही आदाद रिपीट होते जाएंगे। मक़सूम अलैह की कदर जब 2 होती है तो बाकी कदर 0 या 1 होगी। आइए अब हम मज़ीद मिसालों का मुशाहिदा करते हैं। अखिलस के नवज़े तक़सीम में मज़ीद हम मिसालें देखते हैं। यहाँ पर मक़सूम अलैह 3 लिया गया है, मक़सूम बदलता जा रहा है। एक मरतबा 4 है, एक दफ़ा 5 है, एक दफ़ा 6 है, एक दफ़ा मक़सूम की कदर 7 है, एक जगह मक़सूम की कदर 8 है। सब में मक़सूम अलैह सेम है। देखिए खारिजा किस्मत को अलग रंग से ज़ाहिर किया गया है, मक़सूम को यहाँ पर देखिए अलग अलग ब्लैक रंग से ज़ाहिर करें। मक़सूम अलैह को 3 पिंक से ज़ाहिर किया गया है। 3 एकन 3 होगा, 3 एकन 3, 3 दुगनी 6। इस तरह से अगर हम तक़सीम करते हैं तो एक मतलब गौर से देखिए 3 एकन 3, 4 में से 3 गया तो बाकी 1 बच गया। 3 एकन 3, 5 में से 3 गया तो बाकी 2 रह गया है। 3 दुगनी 6, 6 में से 6 गया तो 0, 0 से मुराद 6 पूरा पूरा तक़सीम हुआ है। 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो बाकी बच गया है 2। इस तरह से देखिए मक़सूम अलैह 3 अगर हो तब बाकी कदर 0 या 1 या 2 होगी। 0 या 1 या 2, यही आदाद दोहराते जाएंगे, यही रिपीट होते जाएंगे। और एक मिसाल देखते हैं हम, ताकि हमको मालूम हो जाए मक़सूम अलैह और बाकी के दरमियान क्या रिश्ता होता है। यहाँ पर मक़सूम अलैह 4 लिया गया है, मक़सूम बदला गया है। एक दफ़ा 5 है और एक दफ़ा 6 है। मक़सूम की कदर 7 लिया है हमने, मक़सूम की कदर एक दफ़ा 8 लिया है, मक़सूम की कदर एक मरतबा 9 भी लिए। तो यहाँ पर 4 एकन, यहाँ 4 1 मरतबा जाएगा, 4 1 मरतबा जाएगा, यहाँ 4 2 मरतबा जाएगा, 4 2 मरतबा जाएगा। देखिए इसकी कदर क्या होगी, 4 एकन 4, 4 एकन यहाँ भी 4 आएगा, 4 एकन 4, यहाँ 2 मरतबा जाएगा, 4 दूनी 8, और आखिर में भी देखिए 4 दूनी 8। बाकी की कदर क्या है, गौर करते हैं एक बार। 4 एकन 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बाकी रहेगा, 7 में से 4 गया तो 3, 8 में से 8 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1। देखिए अब यहाँ पर अगर मक़सूम अलैह 4 है तब बाकी की कदर 0, 1, 2, 3 फिर वही रिपीट होते जाएंगे। तो इस तरह हम एक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि बाकी और मक़सूम अलैह के दरमियान। उससे क़ब्ल एक मतलब जदवल का मुशाहिदा करेंगे। देखिए मक़सूम अलैह की कदर अगर 2 हो तो बाकी 0 और 1 होगा। मक़सूम अलैह की कदर 3 हो तो बाकी 0 कमा या 1 कमा 2 होगा। मक़सूम अलैह की कदर 4 हो तो 0 या 1 या 2। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर मक़सूम अलैह की कदर 11 हो, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। तो अगर हम जदवल का मुशाहिदा करते हैं मक़सूम अलैह की कदर से बाकी कदर एक कम होगी। ये 2 से शुरू हो रहा तो 1 तक ही ख़त्म हो रहा, उससे एक कम होगी। ये 3 से मक़सूम अलैह शुरू हो रहा तो ये 2 पर ही ख़त्म होगा। अगर मक़सूम अलैह की कदर 4 हो तो ये बाकी कदर 3 तक आएगा यहाँ पे, और एक नंबर आना है 3। अगर 9 हो तो यहाँ पर 8 तक, 10 हो तो 9 तक, 11 हो तो आखिर में 10 तक आएगा। तो इस तरह हम नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। इससे पहले क़ानून तक़सीम देखेंगे, तक़सीम का क़ानून क्या कहता है। हम जानते हैं कि मक़सूम अलैह मसावी है, मक़सूम मसावी है, मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बाकी। यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए हम देखते हैं। अगर 14 को हम तक़सीम करते हैं 5 से तो 14 मसावी 5 ज़रब 2 जमा 4 होगा। अगर आप मक़सूम को ए समझेंगे, मक़सूम अलैह को अगर बी तस्वुर करते हैं, खारिज क़िस्मत को सी और बाकी को आर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हासिल हमको 14 को 5 से तक़सीम किया, 5 दूनी 10, बाकी बच गया है 4। तो 5 दूनी 10 जमा 4 14। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कदर मसावी होती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दिए गए मुस्बित सही आदाद ए और बी के लिए क्यू और आर एक मुनफरिद जोड़ पाया जाता है, जो ए मसावी बी क्यू जमा आर, 0 छोटा है मसावी आर, छोटा है बी को मुतमईन करता है। ऐसे कुलियों को, ऐसे खानों को हम कहते हैं अक़लीदस का नज़रिया तक़सीम या अक़लीदस का तक़सीमी एल्गोरिथम। तक़सीम एल्गोरिथम को पेश करने वाला माहिर है
रियाज़िदा अखली दस था, उसी के नाम से मौसूम किया गया है। अखली दस का तक़सीमी अलगोरिथम, यहाँ देखिए अभी हमने बोला है कि ए मसावी है मक़सूम को ज़ाहिर करेगा, बी मक़सूम अलैह को ज़ाहिर करेगा, सी खारिज क्यू क्या है, खारिज खिदमत को ज़ाहिर करेगा, और बाकी कदर को आर से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह मक़सूम मसावी है मक़सूम अलैह ज़रब खारिज खिदमत जमा बाकी। अगर हम तो सिम्बालिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अलामत इजहार हम देते हैं, तो ए मसावी है बी ज़रब क्यू जमा आर, जहाँ पर आर की कदर सिफर के मसावी होगी और बी की कदर से कम होगी। तो इस तरह से रिश्ता बनता है ए मसावी है बी क्यू जमा आर, जहाँ पर सिफर छोटा है मसावी आर, छोटा है बी। तो ये हो गया अखली दस का तक़सीमी अलगोरिथम। आइए इसका इतलाक़ भी देखते हैं हम। एक मिसाल यहाँ पर हल करेंगे हम लोग। मिसाल एक ले लेते हैं। अखली दस के तक़सीमी अलगोरिथम के इस्तेमाल से आदे आज़म मुश्तरक मालूम कीजिए, यानी आइन अलिफ में मालूम करना है। आइन अलिफ में हम मुफ़रद अज़दरी के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, जो हमारे इंशाअल्लाह दूसरे तसव्वुर में है, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड लेम्मा हमको इस्तेमाल करना है। अखली दस का तक़सीमी अलगोरिथम इस्तेमाल करना है, यानी ए मसावी है बी क्यू जमा आर। आइए दो आदाद हम लेते हैं यहाँ पर 50 और 70। 50 और 70 यानी इनमें छोटा आदद 50 से बड़ा 70 है, लिहाजा मक़सूम 70 होगा, मक़सूम अलैह 50 होगी। हम तकसीम करते हैं 70 को 50 से। तकसीम देख लीजिए एक बार, 50 से 50, 70 में से 50 गया तो 20 बच जाएगा। मज़ीद तकसीम करते हैं तो ये मक़सूम अलैह जो 50 था बाद में मक़सूम बन जाएगा, और जो बाकी क़दर है मक़सूम अलैह बन जाएगी। 20 दूनी 40, बाकी बच गया 10, ये बाकी की कदर है। बाकी कदर अगले मरहले में मक़सूम अलैह हो जाएगी, मक़सूम अलैह अगले मरहले में मक़सूम हो जाएगा। 10 दूनी 20, बाकी कदर सिफर है। अगर हम इसको सिंटैक्स में देखते हैं तो 70 मसावी है 50 ज़रब 1 जमा 20, और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 50 मसावी है 20 ज़रब 2 जमा 10, 20 दूनी 40 जमा 10 50 के मसावी होते हैं। और एक स्टेप हमने यहाँ पर भी किया है 20 मसावी है 10 ज़रब 2 जमा सिफर। सिफर से मुराद पूरा तकसीम हो गया है, लिहाजा हम कह सकते हैं 50 और 70 का आइन अलिफ में 10 होगा। 10 से पूरा तकसीम हुआ है, लिहाजा ये 10 इसका जवाब होगा। अखली दस का तरीक़ा इस्तेमाल करते हमने आइन अलिफ में मालूम किया है। आइए मश्क 1.1 का एक सवाल भी हल करते हैं। यहाँ पर मश्क 1.1 का सवाल है, अखली दस के तक़सीमी अलगोरिथम के इस्तेमाल से आदे आज़म मुश्तरक मालूम करना है हमको। दो आदाद ले रहे हैं हम, 270 कामा 900, इसमें 900 बड़ा आदद है, 270 छोटा है, लिहाजा 900 मक़सूम होगा और 270 मक़सूम अलैह होगा। आइए तकसीम पर गौर कीजिए। 900 को 270 से तकसीम किया जा रहा है, 270 ज़रब 3 करेंगे तो 810 हासिल होगा, 90 बाकी रहेगा। 270 को 90 से तकसीम करने पर 90 दिया 270, पूरा तकसीम होता है, बाकी सिफर रहेगा। तो इसका सिंटैक्स हम इस तरह लिखते हैं, 90 मसावी है 270 ज़रब 3 जमा 90। इसके बाद हमने मज़ीद 270 को तकसीम किया है, 90 ज़रब 3 जमा सिफर, यानी पूरा तकसीम हुआ, तो हम समझते हैं यहाँ का जवाब मुकम्मिल हो गया। लिहाजा 270 और 900 का आइन अलिफ मीम 90 होगा। इस तरह से मश्क 1.1 में और भी सवालात हैं, उन सवालात को अखली दस के तक़सीमी अलगोरिथम के इस्तेमाल से आइन अलिफ मीम आप लोग मालूम कीजिए और जवाब की तस्दीक कर लीजिए। और इंशाअल्लाह हम लोग इसके बाद के जो इतने भी तसव्वुरात हैं, जैसे मुफ़रद अज्जा ज़रबी की मदद से आइन अलिफ मीम और ज़ान अलिफ मीम मालूम करना है, इसको हम अगले वीडियो में इंशाअल्लाह देखेंगे। उम्मीद कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे। अपने कमेंट्स को मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9948854854 पर रवाना कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। उम्मीद कि आपने बहुत समाज फरमाया। दोबारा और एक मरतबा जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा।